question. First of all, find national income. Find national income when GDP at MP. GDP at market price. GDP means gross domestic productivity or gross domestic income at market price. It is given rupees 50,000. Gross capital formation is given, it is rupees 10,000. Net capital formation is rupees 8,000. And the capital loss it is mentioned rupees 6,000. Next, excise duty. Excise duty is given rupees 4,000. It is given 4,000. We have to calculate national income. National income means yes, national income means NNP at FC. We have to calculate NNP at factor cost. Net national productivity at factor cost. So first of all, we have to understand the question and all the values which are given. The value which is given, that is GDP at MP. Next is gross capital formation and net capital formation, other than capital loss and excise duty. You all know that excise duty is a kind of indirect tax. Okay, so here indirect tax is given. Next, capital loss we are not including and we are not taking this value. यह हमारे कहीं पर भी काम नहीं आ रही है. And other than gross capital formation and net capital formation we have given. So from these two values, आप भूल जाइए कि यहाँ पर क्या है, capital formation है, but focus on gross and net value. If we will deduct net value from the gross value, we will get the depreciation. So from here we will get depreciation, and depreciation can be used to convert this value from gross to net. Okay, तो यहाँ से हम gross को net में convert कर लेंगे, and net factor income is not mentioned. It means it is zero. It will be considered as zero. तो यहाँ first of all we will convert GDP to NDP. NDP at MP. Okay? To convert NDP net value के लिए हमें क्या चाहिए होगा? Depreciation, और depreciation आपके पास कहां से आएगा? Gross capital formation minus net capital formation. Gross capital formation कितना दिया हुआ है? That is 10,000 minus net capital formation 8,000. तब तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 2,000. अब ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें एनडीपी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है. एनडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? जीडीपी के थ्रू. जीडीपी एमपी से आपको एनडीपी एमपी कैलकुलेट करना, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन. What is the value of GDP MP? GDP MP कितना दिया है? 50,000 minus depreciation 8,000.
ये आपके पास में वैल्यू आई है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, अब ये जो आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में और डोमेस्टिक वैल्यू को कन्वर्ट करना है अपने को नेशनल वैल्यू में। टू कन्वर्ट नेशनल वैल्यू वी रिक्वायर एनएफआईए। एनएफआईए नॉट मेंशन्ड, इट मींस इट इज 0। अब यहां एमपी से अपने को कन्वर्ट करना है। देखिए एनडीपीएफसी फैक्टर कॉस्ट पर लाना है आपको, तो आप एमपी से क्या करेंगे, कैसे होगा कन्वर्जन? या एनआईटी, एनडीपी एमपी माइनस एनआईटी। अगर आप लोगों ने कल ध्यान से पढ़ा होगा और घर जाके फिर से फॉर्मूलाज देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस, the value at market price into the value at factor cost, we need net indirect taxes. Net indirect taxes, it means IT minus subsidy. IT is indirect taxes minus subsidy. Subsidy is not mentioned, it means subsidy is 0 and IT आपको एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहां से अपने क्वेश्चन के अंदर पुट अप करेंगे। एनडीपी एट एफसी आपके पास में आ जाएगा यहां से 48,000। एमपी आपकी वैल्यू देख कितनी आई थी अपने पास 48,000 माइनस एनआईटी। आईटी कितना है अपना 4,000 माइनस 0। 0 हमने क्यों लिखा है? बिकॉज ऑफ सब्सिडी। यहां एनआईटी का फॉर्मूला, एनआईटी आपका क्या होगा? आईटी माइनस सब्सिडीज, और सब्सिडी अपने पास में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट 48,000 माइनस 4,000, 44,000। ये 44,000 आपके पास में क्या आ गई वैल्यू? एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी आपने कैलकुलेट कर लिया है, इस एफसी से अपने को कैलकुलेट करना होगा एनएनपीएफसी, तो प्लस 0 हो जाएगा। इट मींस एनडीपी और एनएनपी अपना सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि एनएनपीएफसी नहीं दिया है। और जब कोई वैल्यू आपकी मेंशन नहीं होती है तो हम ये सोचते हैं कि वो वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। इट इज कंसिडर्ड दैट दैट वैल्यू विल बी 0। यहां आप इसमें मेंशन करेंगे एज एनएफआईए इज नॉट गिवन, सो इट विल बी कंसिडर्ड 0। ठीक है, नोट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ सेम होते नहीं है बट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। अगर एनएफआईए मेंशन्ड होता, मान लो एनएफआईए आपका दे रखा था 4,000, तो हम जब एनडीपीएफसी करते तो इसमें हमें प्लस एनएफआईए करना होता, तो आपका वापस क्या आ जाती वैल्यू एनएनपीएफसी की 48,000। और अगर ये एनएफआईए माइनस 4,000 होता तो हम इसमें से क्या करते उसको टू, अगर पेड टू अब्रोड होता तो हम इसको क्या करते माइनस कर देते और फिर ये वैल्यू आपकी आ जाती 40,000। ये डिपेंड करता है कि एनएफआईए कितना है।